नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आप लोगों ने अपने पूरे जीवन में विभिन्न प्रकार के साधु संत, सन्यासी और नागा साधुओं को देखा होगा, लेकिन आज मेरे साथ दो ऐसे नागा सन्यासी बैठे हैं। दोनों जुड़वा भाई है और ये दुनिया में पहली बार शायद ऐसा है कि एक घर से ही दोनों के दोनों बेटे जो जुड़वा भाई थे वो दोनों ने सन्यास लिया और नागा साधु ये बन गए। इनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इनकी पूरी कहानी परिवार के बारे में, इन्होंने कैसे कैसे अपने परिवार को सेटल किया, उसके बाद संन्यास लिया, वो सब आप पिछली वीडियो में जान सकते हैं। या तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इनकी वीडियो देख सकते हैं या नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। और इनके बारे में मैं बता दूं, ये एक ऐसे नागा साधु हैं जो बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर केरला रह चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इन दोनों भाइयों के बारे में जानेंगे क्योंकि आपने कहीं नहीं देखा होगा। वैसे भी किसी घर से नागा बनना रेयर होता है आज के समय में, लेकिन ये दोनों जुड़वा भाई नागा बने ये भी रेयर है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ योर नेम? नमो नारायण। सुंदरगिरी। सुंदरगिरी जी। यहाँ पे एक चीज़ और है कि इन्हें हिंदी और इंग्लिश नहीं आती और ये मलयालम में जवाब देंगे और इनकी बातों को ट्रांसलेट करेंगे इनके भाई, और कोशिश करेंगे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, लेकिन इनकी बातों को ये ट्रांसलेट बत करके बताएंगे कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, परिवार के बारे में जानना है तो आप इनके जो लाइफ के बारे में इन्होंने बताया था उसमें जाकर सुन सकते हैं। आप दोनों को मेरा ओम नमो नारायण प्रणाम। फर्स्टली, why you both brothers become Naga sannyasi? Because it's rare. So why you become Naga sannyasi? ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാഗസന്യാസി തിരഞ്ഞെടുത്തത്? സമ്പ്രദായം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആദ്യം ഐ ഷുഡ് ഗിവ് ദ ആൻസർ. 3 years before I took sannyasi diksha. Then after 2 years I went to South India. Actually, before me, he had icha to take sannyasi diksha, but pata nahi God ka what is he rated first diksha. He chose first diksha for me. Then I talked about him about our sampradaya. Then that time he got some feelings. I also should take sannyasa diksha from Naga sampradaya. Then I helped him to take diksha from our sampradaya. He got दीक्षा from this कुंभ मेला। ओके। इनका कहना है कि इनके ये भाई है, ही इज़ एल्डर और यंगर, ही इज़ एल्डर वन। इनके जो बड़े भाई है पहले ये संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन ये भगवान की कृपा रही कि इनसे पहले इन्होंने संन्यास लिया और फिर इन्होंने आपने मदद की इनकी, ही हेल्प्ड हिम टू बिकम सन्यासी। और उसके बाद इन्होंने अपने परिवार को सेटल किया, उनका आशीर्वाद लिया और इन्होंने परिवार की अनुमति के बाद ये बन गए नागा साधु। तो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस आफ्टर बिकमिंग नागा साधु बनने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? നാഗസന്യാസിൻ്റെ അനുഭവം ഇതിൽ തന്നെ പറയാനാണ്. ബസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് നാട്ടിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മലകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം തമിഴ്നാട്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് മല കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഫീലിംഗ്, കണ്ണ് നിറഞ്ഞു വീഴാൻ തുടങ്ങി. ആനന്ദം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ബസ്സിലായതുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഒച്ചത്തിൽ കരയുന്നുണ്ട്, പൊട്ടിക്കരയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആളുകളുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഒരു 3/4 മണിക്കൂറോളം ആ ഒരു ആനന്ദാവസ്ഥ തുടർന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പല ചിന്തയും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ചിന്തകളും ചിന്തിച്ചു. കാമചിന്ത, പല ചിന്തകൾ. എന്നിട്ടും അത് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. വീട്ടിൽ അച്ഛനമ്മയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. അച്ഛനമ്മയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ആനന്ദ സമയത്ത് അവർ ഒരുപാട് ദൂരെ പോലെ തോന്നി. ആ ആനന്ദ സമയത്ത് അവർ അടുത്തേല, അവരുടെ ചിന്ത പോലും ഒരു ഉണർവ് നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു 3/4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അത് തനിയെ അങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ ആനന്ദം അത് വലിയൊരളവിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അത് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് വേണമെന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് സാധനങ്ങൾ തന്നെ തോന്നിയത്. ആ സമയത്ത് മാതാവ് പിതാവ് എന്നുള്ളത് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ആനന്ദം കിട്ടിയപ്പോൾ അവരൊക്കെ തീരെ ഒന്നും അല്ലാതായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ ആ അനുഭവം 1 വർഷം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് വേണമെന്നുള്ള സാധന ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഗുരുകൃപ കൊണ്ട് ആനന്ദം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമല്ല, അത് ഗുരുകൃപ കൊണ്ടേ ഗുരുസേവ കൊണ്ടേ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, എല്ലാം ഗുരുവിൻ്റെ കൃപ പോലെ തന്നെ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ആക്ച്വലി
some years before he went to Tamil Nadu. Then that time he went to one Giri mountain. That time when he saw that mountain, that time he got so emotional. He cried more than 45 minutes. That time that time he was fully Anand, fully happiness. He normally he crying, but that time he was fully happy. Then he tried to control that happiness. That was more high level happy. High level Anand. Then he thought about some Kamachinda ladies something. But that time also, front of that Anand, this Kamachinda also gone. Like क्या बोलते हैं. Then also he thought about his family, Madhupide. That time also they also went outside. Then after that he doesn't want to be with the family. That time fortunately he contacted with me. Then first I said him, I worked for our family 3 years. So you also should work. Then you also give something for our family. Then lagbhag 2 saal he worked. He worked for family. He did some business. Then he made little something money. Then he also settled our family. Then after that, our Madhupida gave him permission to take sannyasa diksha. ओके इनका कहना है कि एक बार जब ये तमिलनाडु जा रहे थे तो एक पर्वत को देखकर, पहाड़ को देखकर इन्हें बहुत रोना आया. मोर देन अप्रॉक्स 45 मिनट तक, 45 मिनट तक ये रोते रहे. वो किसी खुशी के, किसी दुख के आंसू नहीं थे, किसी की याद में वो आंसू नहीं थे, बल्कि वो परमानंद था. उन्हें ये समझ नहीं आया, तो इन्होंने उस दुख को, उन आंसुओं को रोकने के लिए कुछ सोचने लगे दिमाग में. उत्तेजना के बारे में सोचा, यानी महिलाओं के बारे में. तब भी वो आंसू नहीं रुके. इन्होंने अपने माता पिता के बारे में सोचा, तब भी वो आंसू नहीं रुके. 45 मिनट तक वो आंसू बहते रहे, लेकिन वो आनंद के आंसू थे. और उस आनंद के सामने इन्होंने बहुत कुछ डिस्ट्रैक्शन सोचे, लेकिन वो नहीं रुके. उसके बारे में इन्होंने अपने भाई को बताया. इनके भाई ने कहा कि मैंने नागा बनने से पहले परिवार को सेटल किया, उनको सब कुछ देने के लिए, ज़मीन घर देने के लिए 3 साल काम किया, सब पैसा सारा इंतज़ाम उनके लिए किया. उसके बाद मैंने उनकी परमिशन से संन्यास लिया. आपको भी वही काम करना चाहिए. आप भी काम कीजिए और अपने परिवार को कुछ दीजिए और उसके बाद संन्यास लीजिए. तो इनके कहने पर इन्होंने 2 साल एक बिज़नेस किया. बिज़नेस के बाद कुछ पैसे जोड़े और अपने परिवार को दिए, और फिर उसके बाद अपने परिवार की ब्लेसिंग लेकर ये भी नागा साधु बन गए. तो व्हाट प्रॉब्लम्स ही ऑलरेडी टोल्ड अबाउट हिज प्रॉब्लम्स. तो व्हाट प्रॉब्लम्स यू हैव फेस्ड आफ्टर बिकमिंग नागा? നാഗസന്യാസം അതിന് ശേഷം പബ്ലിക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ്? ഇല്ല, അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതമാണ്. ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളേ ഉണ്ടാവും, സുഖമൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, നന്നായിട്ടറിയാം. അത് തീർച്ചയാക്കിയിട്ടാണ് വന്നത്. സുഖവും ദുഃഖമുള്ള മനസ്സിലുള്ളതാണ്. പുറത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ സുഖം കിട്ടില്ല, അകത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ സുഖം കിട്ടും. ആ സുഖമുള്ളതിന് പുറത്തൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുഖം തന്നെയായിരിക്കും. ആളുകളുടെ മനോഭാവം നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ആക്ച്വലി സന്യാസി ലൈഫ് always very difficult, very very difficult. When you choose sannyasi life, that time, you know, if you take sannyasi life, I will get to many problems. But every problems, when actually this is our watching problem. If we see the old world is happy, that time we can see old world is happy. But if you see old world is going through problem, that time we will also feeling that. But he is saying because of his sadhana, that is doesn't matter. That is very silly matter. If we want to control our mind, for that we should do more practice. So this is the part of our sadhana, pura. So you both go everywhere together? Yes. साथ जाते हैं जहाँ भी जाते हैं, और you both live together? Not like that. Actually, I am staying in Haryana. There is my Gurusthan, and he is staying in Punjab. Okay, you live in Haryana, or he is with my Guruji, and he living in Punjab with his Guruji. Sometime we will take under and 8 days sadhana. Sometimes we will go together or we will go alone. मेन कारण एक ही मनोभाव, एक ही लक्ष्य.
our मनोभाव एक ही लक्ष्य. So why दोनों जुड़वा भाई है ना पहले, अभी जुड़वा भाई चलने एंड गुरु मतलब इनकी मनोभावना और लक्ष्य एक ही है, देखिए सर. इसलिए इससे ये मैटर नहीं करता कि कहाँ रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं. यू आर अ बॉडी बिल्डर और आई थिंक बॉडी बिल्डर ईट सो मच. Sometimes sadhu face food problem. They don't get food for 3 days, 4 days. Sometimes once in a day or once in a week. So how you both manage food, or what problems you are facing or you have faced? एक्चुअली हम लोग बोलता है भजन भोजन, आत्मा का भोजन क्या भजन है. भजन. So अभी देखो, when we staying in our ashram, we will get everything from our Gurusthan. But that time also sometimes we will take 3 days, 4 days upavas. With every means we will get every facility there. But that time also sometimes we will take hard sadhana. That time 3 days food nahi hai, only water. So that also I think yearly we doing more than 10 times. So if you go to outside, if we didn't get 2 or 3 days food, no problem, we can manage it. You can manage We without can manage. eating. Or if you get more hungry, we can go to any home, then we can do bhiksha. Okay. Bhiksha also our part of our life. But in our Gurusthan, our Guruji always giving morning 1 ghante bhiksha. Bhiksha. That's also sadhana. When we doing bhiksha, that time our मान अभिमान will go, everything will go, अहंकार भी will go. मतलब ये है कि कई बार तो ऐसा होता है 2-3 दिन तक नॉर्मली भूखे रह सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा ही भूख लगती है तो लोगों के घरों में जाकर मांग भी लेते हैं, जिसे भिक्षा कहते हैं. और अपने गुरु स्थान पर होता है तो रोज़ 1 घंटा भिक्षा मांगते हैं. और भिक्षा मांगने से क्या होता है, मान अभिमान और अहंकार सब निकल जाता है. और जिस दिन ये मान अभिमान के चक्कर में ही पूरी दुनिया उलझी पड़ी है, और इस जैसे ही मान अभिमान पैसा आने लगता है तो लोगों में अहंकार भी आता है. यू बोथ ट्विंस बिकम नागा. व्हाट्स योर हार्डेस्ट टाइम टिल नाउ? हार्डेस्ट टाइम Actually, we after sannyas diksha, we don't say any hardest time or easy time. Is going through like that. God decided. Then we have our Guru's kripa. So we can overcome any hard time. We have that belief in us. No problem. मतलब ये है कि संन्यास लेने के बाद आपके लिए आए तो है, बहुत से हार्ड टाइम आए हैं, लेकिन आपके अंदर वो साधना से और गुरु कृपा से वो शक्ति आ जाती है कि आप ओवरकम कर सकते हो, हर चीज़ को टाल सकते हो, सहन कर सकते हो सारी चीज़ें. You both are real brothers, but after sannyas, you both are different. His guru is different and your guru is different. So what is your relation after becoming Naga? And tell me also about your Guruji. My Guruji नाम गुरुजी श्री हनुमान गिरिजी, गुरुस्थान पंजाब से. फिर Actually, you know something interesting matter. Before 3 years, I took sannyas diksha. He got sannyas diksha from this Kumbh Mela. Haridwar में. But presently, he is my Dada Guru. Dada Guru. हाँ. What is the meaning of Dada Guru? Dada Guru, grandfather Guru. Grandfather. He is my grandfather Guru. Okay. How it possible? Because his Guruji name is Hanuman Giriji. Hanuman Giriji. He is a great Mahatma of, also senior Mahatma of our Sannyasi Sampradaya. Okay. So he got Diksha from that Mahatma. So that's why he became my Dada Guru. Dada Guru. Dada Guru. इनका ये कहना है कि ये भले ही इन्होंने अभी हरिद्वार के कुंभ में दीक्षा ली हो और इन्होंने 3 साल पहले, उस हिसाब से देखा जाए तो इस फील्ड में ये बड़े होने चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इनके जो गुरुजी है वो इनके दादा गुरु हैं, तो इसलिए ये इनके कौन हुए? दादा भाई. He is my Dada Guru. ही इज़ दादा गुरु. ये इनके दादा गुरु हुए क्योंकि इन्होंने एक बड़े और महान संत से दीक्षा ली है, इस वजह से. दैट्स वाई. वैसे तो ये रियल ब्रदर है, लेकिन अगर संन्यास के मार्ग पर देखा जाए तो ये इनके दादा गुरु है. He is not my brother, he is my Dada Guru.
What message would you like to give to the society on the basis of your experience? यानी आप अपने अनुभवों के आधार पर बताइए समाज के नाम एक संदेश देते हुए। देखो, ज़्यादा आदमी के एक ही प्रॉब्लम, सुख दुख खुशी, पूरा फीलिंग, काम विचार, पूरा फीलिंग, पूरा काम, पूरा विचार अंदर से, बाहर से नहीं। बट ईश्वर बाहर से देख रहे, वो अच्छा नहीं। मुक्ति और भक्ति बाहर से नहीं। मुक्ति की इच्छा ज़्यादा आदमी के पास, बट काम करना, साधना करने की ताकत नहीं। सो मुक्ति देखना, भक्ति नहीं मिलेगा। सो भक्ति बनाओ, साधन के भक्ति बनाओ, मुक्ति ऑटोमेटिकली कम। मुक्ति के ऊपर भक्ति, भक्ति बन गया, मुक्ति आ गया, हो गया, फिनिश। बट ज़्यादा आदमी का प्रॉब्लम अंदर से पूरा फीलिंग, बाहर से वो अच्छा नहीं। पूरे अंदर से देखो, वो थर्ड आई बोले ना इंग्लिश में, थर्ड आई। सो वो बाहर से देखने के लिए नहीं, अंदर देखने के लिए। सो दिन में 5 मिनट जस्ट ट्राई करो। जस्ट गृहस्थ आश्रम के जस्ट सिंबल। ज़्यादा आदमी मंदिर चल रहे हैं, पूरा इच्छा, बीमार, पैसा पीछा, वो इच्छा में चलना अच्छा नहीं। एक ही जस्ट 5 मिनट, ओनली 5 मिनट आप मंदिर चल में कि कपड़ा देखो, जस्ट नीचे डालना है ना। सो मैं पिता नहीं, मैं पुरुष नहीं, माता नहीं, मेरा बच्चा नहीं, मेरा का वाइफ नहीं, पूरा आपका, आप क्या है, मेरा अहंकार क्या, मेरा बढ़िया क्वालिफिकेशन, वो पूरा आपका बंद क्या, वो पूरा 5 मिनट छोड़ो। सो फाइनली देयर ओनली शरीर, आप जीवन, और जीवन के साथ मंदिर में चलो, क्या क्या प्रार्थना करो, क्या क्या करो, दैट्स अ फल। इच्छा बिच्छा में चलना, एक ही फल इधर नहीं आएगा। दैट्स अ प्रॉब्लम। मीन्स भक्ति इज हाई विद, वी कांट गेट मुक्ति विदाउट भक्ति। हम अमूमन अपने जीवन में अनुभव करते हैं, या आप सब लोग देखते होंगे, मैं भी या कोई भी, सुख दुख काम क्रोध, ये जितनी भी फीलिंग्स हमारे अंदर से है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं, जो कि गलत है। अब हमें ईश्वर को बाहर ढूंढना नहीं है, हमें अंदर ढूंढना है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हम मुक्ति की कामना करते हैं, लेकिन मुक्ति की कामना भी हम बाहर से कर रहे हैं, जबकि वो चीज़ हमारे अंदर से आती है। और लेकिन मुक्ति भी तभी संभव है जब आपके जीवन में भक्ति आएगी, क्योंकि भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। लेकिन भक्ति कैसे आएगी, वो जानने वाली बात है, और वो भक्ति साधना से ही आती है। आपको साधना ही करनी पड़ेगी ताकि आपके जीवन में वो भक्ति आए, और जब वो भक्ति आएगी तो आप ऑटोमेटिकली मुक्ति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें बाहरी संसार में चीज़ों को नहीं ढूंढना है, क्योंकि जो भी फीलिंग्स होती है वो हमारे अंदर से आती है, चाहे दर्द होता हो, सुख दुख हो, या हम देखते हैं ना किसी भोजन को हम देखते हैं तो उसके प्रति जो हमारे अंदर उसे पाने की लालसा होती है, उसे चखने की होती है, वो हमारे अंदर से आता है, वो स्वाद हमारे अंदर से आता है। किसी पहाड़ को या किसी नज़ारे को जब हम देखते हैं अपनी आँखों से तो हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो वो आकर्षण हमारे अंदर से आता है। उसे देखने का माध्यम ये नज़रें हैं, लेकिन आता वो अंदर से हैं। ऐसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो बड़ी शांति का अनुभव होता है, देवतुल्यता का अनुभव होता है, तो वो भी हमारे अंदर से आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, मुक्ति को और ईश्वर को हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हमें अपने अंदर ढूंढना है, उसके लिए हमें भक्ति करनी होगी, लेकिन भक्ति के लिए हमें साधना की ज़रूरत है। ये इनका कहना है कि जो भी ये चीज़ें हमें अपने अंदर ढूंढनी चाहिए जिन्हें हम बाहर ढूंढ रहे हैं। अनदर क्वेश्चन कम्स इन माई माइंड, आई ऑलवेज सॉ यू वॉकिंग बेयरफुट, तो और यू ऑल्सो, तो वाई यू बोथ वॉक और ट्रैवल बेयरफुट? एक्चुअली ये दोनों हमेशा नंगे पैर घूमते हैं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह, सर्दियों में, गर्मियों में, पथरीले रास्तों पर, हर जगह हर समय पैदल चलते हैं। तो वाई डू यू ट्रैवल ऑलवेज बेयरफुट? ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് മണ്ണാണ്. ആ മണ്ണിനോട് പാദം ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവാം. ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ. This body is a mud, but if we always touch bhumi, this is also mud. That time our route will be easy. जमीन से जुड़े रहते हैं. Our path will be a little bit easy. Okay. This is also one sacrifice. गुरु साधना है. गुरु साधना है. इनका कहना है कि ये भी एक प्रकार की गुरु साधना है। और हमारा जो शरीर है ना, जो हम कहते हैं 5 तत्वों से बना है, ये मिट्टी से बना शरीर
और ये मिट्टी से बनी धरती, जब ये इसको टच करता है तो हम ज़मीनी स्तर पर जुड़े रहते हैं, और ये भी एक प्रकार की साधना ही है। इसलिए मिट्टी से बने शरीर से ज़मीन को यानी मिट्टी को छूते हुए ये लोग चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप दोनों ने अपने जीवन के पलों को हमसे और अपने अनुभव को हमसे साझा किया। हम इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते क्योंकि बहुत कुछ है जानने को और बहुत कुछ है समझने को, और इतना कुछ है कि आप समेट भी नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ब्रीफ में हम आप तक साधुओं के बारे में नॉलेज पहुंचा रहे हैं, उनके जीवन के बारे में बता रहे हैं। इन दोनों को देखकर आप समझ गए होंगे कि अगर साधु बनना है तो इस तरह से बनना है, अपने परिवार को सेटल करने के बाद। ये नहीं है कि आप अपने परिवार को अकेला छोड़ दें, और ऐसा आपने बहुत कम सुना होगा कि अपनी फैमिली को सेटल करने के बाद कोई नागा बनाए, क्योंकि रेयर होता है ऐसा कि कोई अपने परिवार को पहले सेटल करे और फिर साधु बने, फिर सन्यासी बने। और ये भी रेयर है कि एक ही घर के दोनों बेटे, वो भी जुड़वा बेटे, साधु बन गए हैं। इन दोनों की स्टोरी मुझे लगता है कि आप लोगों को शेयर करनी चाहिए ताकि लोग जान सकें कि सन्यास इतना इजी नहीं होता है, लेकिन अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या क्या आपको करना चाहिए। इसी तरह से हम साधु संतों के बारे में, नागा साधुओं के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि कोई भी साधु या भगवा कपड़ों में मिले या कोई भी इंसान हो, किसी का अनादर मत कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए, किसी को ढोंगी मत कहिए, किसी को फरेबी मत कहिए, किसी को फर्जी मत कहिए, क्योंकि आप इंसान को देखकर या उससे बात करके निर्धारित नहीं कर सकते कि वो साधना के किस मार्ग पर है और वो कितना सिद्ध है और उसकी साधना कितनी गहरी है। ये आंखों से देखकर नहीं, ये खुद साधना करके समझने से पता चलता है। इसलिए किसी को ढोंगी कहकर अपने कर्मों को ख़राब मत कीजिए। अगर वो आदमी भगवा पहनकर गलत काम कर रहा है तो उसका फल उसको भगवान देगा। आप निर्धारित मत कीजिए कौन कैसा है। साधु आपके दर पर आता है तो उसे भिक्षा दे दीजिए, क्योंकि उसने त्याग किया है सनातन की रक्षा के लिए और आप लोगों के लिए। इसलिए सहयोग कीजिए सनातन के अपने इन रक्षकों का, जो आपके लिए अपना सब कुछ त्याग कर बैठे हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं साधु संतों की एक और अन्य स्टोरी के साथ। धन्यवाद।